Assalamualaikum students, myself Wasim Ahmed Alrez from Deep Progressive Urdu High School, Solapur. Today we are going to learn a poem called You Start Dying Slowly. Name is written here. You Start Dying Slowly, and the poet of this poem is Pablo Neruda. Pablo Neruda. First of all, I read this poem. Later on, we'll learn. The poet says, if you do not travel, if you do not read, if you do not listen to the sounds of life, if you do not appreciate yourself, you start dying slowly. When you kill your self-esteem, when you do not let others help you, you start dying slowly. If you become a slave of your habits, walking every day on the same paths, if you do not change your routine, if you do not wear different colors, or you do not speak to those you don't know, you start dying slowly. If you avoid to feel passion and their turbulent emotions, those which make your eyes glisten and your heart beat fast, you start dying slowly. If you do not change your life, when you are not satisfied with your job or with your love, if you do not risk what is safe for the uncertain, if you do not go after a dream, if you do not allow yourself at least once in your lifetime to run away from sensible advice. Now, students, the name of the poem, You Start Dying Slowly. What does it mean? It doesn't mean that you are going to die, you are dying. Here, what does the poet mean by this? You start dying slowly. The poet says, from dying slowly, that losing hope of a happy future. शायद क्या कहना चाहते हैं डाइंग स्लोली से? इसका क्या मतलब ले रहे हैं? यहाँ पर बताया गया लूजिंग होप ऑफ ए हैप्पी फ्यूचर. डाइंग स्लोली अगर बोलते हैं हमारी जुबान में, अगर हम बोलते हैं डैट हम जो है एक बेहतरीन मौका जो तरक्की करने का था, जो मुस्तकबिल बनाने का था, वो खो रहे हैं. आगे देखते हैं वो क्या बोलना चाहते हैं. इफ यू डू नॉट ट्रैवल, अगर आप जो है वो सफर नहीं करते हो, इफ यू डू नॉट लीव योर प्लेस एंड फेच अनदर प्लेसेस, इफ यू डू नॉट ट्रैवल टू डिफरेंट प्लेसेस, अगर आप जो है अपनी जगह छोड़ करके दूसरी जगह नहीं जाते हो, सफर नहीं करते हो. अच्छा, इट डजंट मीन दैट बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 10, the poet doesn't want from this sentence that to travel every day. No. Then what? It is for our whole life. अगर हम सफर नहीं करते हैं, अच्छा क्या होगा अगर हम सफर नहीं करते होंगे? If suppose we are not traveling, we are dying slowly. So what? हम अगर सफर नहीं कर रहे तो क्या होगा? If we are not traveling, तो what is happening? We are losing the opportunity. Which opportunity? We are losing the opportunity of visiting different places. अलग अलग जगह को देखने का मौका हम खो रहे हैं.
अच्छा, इन लाइफ इन फ्यूचर हमको जो है वो बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं, एट टाइम्स हमको ट्रैवल करना होता है। इफ यू डू नॉट ट्रैवल एट दैट टाइम वी लूज दैट पर्टिकुलर इवेंट और पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी। फॉर एग्जांपल जैसा हमारे पास में आजकल जो है वो बहुत सारे बच्चे दे वांट टू बिकम समथिंग। सपोज फ्रॉम यू समवन वांट्स टू बी अ डॉक्टर, समवन वांट्स टू ज्वाइन मेडिसिन फील्ड। यू नो आफ्टर स्टैंडर्ड 12 वो हमको नीट एग्जाम देना होता है एंड देन उसका जो भी रिजल्ट आता है, इफ सपोज आफ्टर क्लियरिंग योर नीट एग्जामिनेशन and you are getting that particular college not in your city, जहां आपका नंबर लगा हुआ है या आपके शहर में नहीं है, then दूसरे जगह आपको जाना होगा। if you are losing that particular time, it means if you are avoiding to travel you are losing the opportunity, as simple as this। and if you do not read, अगर आप नहीं पढ़ते हो तो क्या होगा? स्टार्ट डाइंग स्लोली। इफ यू डू नॉट रीड यू स्टॉप योरसेल्फ फॉर गेटिंग नॉलेज। आप अपने आप को जो है वो मालूमात हासिल करने से रोक रहे हो। इफ यू आर नॉट रीडिंग इंक्लूडिंग न्यूज़पेपर, इफ यू रीड ए डेली न्यूज़पेपर will come to know what is happening around us, not only in your city but also in your country, in whole world। जो कुछ हो रहा है आप वो जो है मालूमात हासिल करने से पीछे रह जाओगे। if you do not listen to the sounds of life, अगर आप जिंदगी के जो है गीत को, जिंदगी की आवाज को नहीं सुनते हो। अच्छा, जिंदगी की आवाज हमको जिंदगी में बहुत सारी चीजें सिखाती है। अगर हम उसको नहीं सुनते हैं तो हम जो है मौका खो रहे हैं। और वो क्या हो रहा है? वी आर डाइंग स्लोली। एंड इफ यू डू नॉट अप्रिशिएट योरसेल्फ, अगर हम जो है हमारी कदर नहीं कर रहे हैं, हमारी तारीफ नहीं कर रहे हैं, हम में बहुत सारी चीजें होती है, यू आर हैविंग लॉट्स ऑफ एबिलिटीज, लॉट्स ऑफ गुडनेस, हम उसको जो अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। ऑन डेली बेसिस आप अपने आप को जो है वो कमतर ही समझ रहे हैं। देन एक किस्म का जो है वो एहसास कमतरी आता है, inferiority complex। If you became a slave of inferiority complex, then you will not have a dream, you cannot go ahead। So appreciate yourself। If you don't, you start dying slowly। अच्छा, start dying slowly, हमने देखा है, you start dying slowly। And though this is the name of the sentence, name of the poem, this one also is a sentence। Here we see two words starting from same letter and having same pronunciation, slowly, S। So this is a figure of speech and the poet uses alliteration। This figure of speech is called alliteration। If two words or more than two words start from same letter and having same pronunciation, this figure of speech is called alliteration। If we see a first line, if you do not, second line, if you do not, third line, if you do not, fourth line, if you do not, this line, if you do not, it is repeating। When a poet does so, he purposely do it। or when a poet
uses this kind of a thing, it is also a figure of speech. And this figure of speech is called anaphora. Anaphora. When a poet is using repeating words, beginning of the verse or a sentence is called anaphora. Now come to our second stanza. In the second stanza, the poet Pablo Neruda says, when you kill your self-esteem. In the first stanza, there is a 4 number line, if you do not appreciate yourself. अगर आप आपकी कदर नहीं करते हैं, अगर हम हमारी कदर नहीं करते तो कौन करेगा? And in the second stanza, first line says, when you kill your self-esteem. अगर आप जो है हमारी खुद की इज्जत नहीं करते, और self-esteem के लिए कहा गया a feeling of being happy with your own character and abilities, और self-respect. अगर हम हमारी ही जो है वो कदर नहीं करते हैं, if you are not respecting yourself, when you kill your self-respect, जब हमारे जो है वो self-respect को हम खत्म कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, when you do not let others help you, जब आप ये मौका दूसरों को नहीं देते कि डैड वो आपकी मदद कर रहा है, ऐसा होता है. At times we need help of others. अगर हम किसी को जो है मौका नहीं दे रहे हैं, someone wants to help you and you are stopping that person to help you, what will happen? The poet says you start dying slowly. तुम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे पड़ जाओगे, तरक्की करने के मौके जो है वो खत्म हो जाएंगे. If you remain idle, अगर हम जो है वो कुछ नहीं करेंगे, you start dying slowly. हम जो है वो आइडल ही रहेंगे, एक जगह जो है वो पड़े रहेंगे. Come to third stanza. If you become a slave of your habits, if you are becoming slave of your habits, हर एक को कुछ न कुछ आदत होती है, हर एक. अगर आप उस आदत का जो है वो गुलाम बन रहे हैं, if you are becoming a slave nowadays, हर एक जो है वो एक आदत का गुलाम है, और वो आदत आज के दिनों में वो मोबाइल. हम अपना प्रेशियस टाइम मोबाइल को हमारे बेहतरी के लिए इस्तेमाल नहीं करके दूसरे किसी काम के में अगर सर्व कर रहे हैं और बहुत सारा वक्त बिता रहे हैं, यू आर बिकमिंग स्लेव ऑफ योर हैबिट. कोई भी हो सकती है. अगर आप उसका हैबिचुअल हो गए तो क्या होगा? इफ यू बिकम अ स्लेव ऑफ योर हैबिट्स, बहुत सारे आदतें होते हैं, अगर आप उसके गुलाम बन रहे हो. वॉकिंग एवरी डे ऑन द सेम पाथ, रास्ते को बोलते हैं, रोड को बोलते हैं. वॉकिंग ऑन सेम पाथ. अच्छा, स्कूल को आने को तो हमारे एक ही रास्ता होता है, तो यहाँ पर शायर बोल रहा है कि अगर वही एक ही रास्ते से हम रोजाना चल रहे हैं तो आगे होता है यू स्टार्ट डाइंग स्लोली. आप जो है स्कूल को आने, हमारे घर से जो स्कूल को आने का जो रास्ता है, अगर रोजाना उस पर जा रहे हैं तो हम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे पड़ रहे हैं. नो, इट डजंट मीन दैट. इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं. इफ when walking every day on the same path, रोजाना जो हम वो काम करते हैं वही काम रोजाना अगर कर रहे हैं तो यहाँ पर वो मतलब, अगर रोजाना कोई काम हम कर रहे हैं, it means that we are wasting our time, precious time, और रोज वही वो कर रहे हैं, टाइम वेस्ट, टाइम पास. तो ये बात हो जाएगी. You start dying slowly if you do not change your routine. यहाँ पर होगा, अगर हमारा रोजमर्रा का जो टाइम टेबल है, रोज जो काम करने के तरीके हैं, उसको अगर हम नहीं बदलते हैं, ऐसा इन दिनों जो है वो घर पे थे 3-4 महीने से लॉकडाउन में घर में, और हमारा रूटीन यही है 10-11 बजे उठने का,
फिर बाद में जो भी हमको मालूम है, कब हम नहाते होंगे, कब नाश्ता करते होंगे, फिर बाद में क्या हमारा वक्त होता होगा। 3-4 महीने से यही थे। ऐसे अगर कंटिन्यू रहा तो स्कूल चालू हो रही है जब भी होगी और हम 10 बजे उठ रहे हैं और वैसे स्कूल को आ रहे हैं, और जब भी छूटेगी घर पे जा रहे हैं, और जो हमारी हैबिट पड़ गई थी जल्दी जो है वो सो जाने की, जल्दी सोना है ना, बिस्तर पे पड़े रहना। अरे रूटीन अगर हम नहीं चेंज करेंगे, बोर्ड एग्जाम आते हैं तो उसका नतीजा क्या होगा हमको मालूम। सो चेंज योर रूटीन। इफ यू आर नॉट चेंजिंग योर रूटीन, इफ यू डू नॉट वेयर डिफरेंट कलर्स, अगर हम जो है अलग अलग रंग के जो है वो नहीं पहनते हैं, अच्छा अलग अलग रंग नहीं पहनते, डिजर्ट नहीं डाला, ऐसे कपड़े पहनने का जहां पर यहाँ का कलर अलग है, यहाँ का कलर अलग है, यहाँ का कलर अलग है, नहीं। इफ यू डू नॉट वियर डिफरेंट कलर्स, अगर जो है हम हमारे में जो है वो रंगीनियत नहीं लाते हैं, अच्छा रंगीनियत लेकर आना, इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं कि हम जो है रंगीले बन जाना। इसका मतलब ये होता होगा कि हमको जो है जो एक तरह का हम काम करते हैं उसको बदल करके जो है अलग अलग तरीके के करना होगा। जैसा अगर वही अगर बात होता है स्कूल की पढ़ाई की, तो उसमें आपको जो है वो टाइम टेबल बना करके जैसा भी होता होगा पॉसिबली हर एक चीज करनी होगी। कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट हमारा अगर जिसमें हमारा इंटरेस्ट है उसी की पढ़ाई करना है, समझ हर एक सब्जेक्ट में हमको जो है वो ध्यान देना होता है। और यू डू नॉट स्पीक टू दोज यू डोंट नो। ऐसे लोग जो अनजाने हैं, अगर हम उससे बात नहीं कर रहे हैं, अच्छा अनजाने लोगों से कैसे बात करने का, हमको तो सिखाया जाता है कि हम जो है वो किसी अजनबी से बात नहीं करने का। अब अजनबी से बात नहीं कर रहे हैं डजंट मीन दैट कि हम जो है वो रास्ते पर हर कोई आ रहा है जा रहा है उससे बात करने का, नहीं। हम कहीं जो है प्रोग्राम में जाते हैं, वहां पर ऐसे लोग भी होते हैं जिन जो हमारे रिलेशन में होते होंगे, हम उनकी जान पहचान भी होती होंगी, लेकिन कभी बात नहीं की। या टाइम्स ऐसे भी होता है व्हेन यू गो टू अ इंटरव्यू, जब आप किसी जो है वो इंटरव्यू को जाओ और वहां पर जाने के बाद में सब लोग बैठे हुए कैंडिडेट्स और इंटरव्यू लेने वाला भी बैठा हुआ है, अगर हम उनसे बात ही नहीं करेंगे दोस्त कैंडिडेट्स, तो उनको जो है वो नॉलेज नहीं आएगा। हमें ऐसा मौका खो रहे होंगे जो हमारे नॉलेज में इजाफा करता होगा, which increase our knowledge. So talk to those to whom you don't know. अनजाने लोगों से जो है उनको बात करना होगा, अनजाने लोगों से जो है मुलाकात, जब कभी मौका ऐसा मिल रहा है तो अगर हम जो है वो उनसे मुलाकात करते होंगे, अगर उनसे बात करते होंगे, नए नए ख्यालात जो वो सुनने का समझने की हमको जो है वो मौका मिलता है। अगर ये सारी चीजें नहीं करते हैं, यू स्टार्ट टाइम, अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम जो है वो पीछे पड़ जाएंगे। स्टार्ट डाइंग स्लो, हम जो है वो मुस्तकबिल में तरक्की करने का मौका छोड़ देंगे। यू विल नॉट फाइंड अ सक्सेस और अ फ्यूचर विच यू ड्रीम्ड ऑफ, जिसको आपने जो है एक सोचा है कि आगे चलकर जो है मुझको ऐसा बनना है, जो भी होता होगा, अगर हम वो नहीं करते हैं, जो यहाँ पर बात है हमने 3 स्टांजास में पढ़ी हुई, अकॉर्डिंग टू पैब्लो नरूडा, हम अगर वो नहीं करते हैं, जिसमें ट्रैवलिंग आ रही है, जिसमें रीडिंग आ रही है, जिसमें जो अप्रिसिएशन की बात आ रही है, सेल्फ रेस्पेक्ट की बात आ रही है, हेल्प लेने की बात आ रही है, और बिकमिंग स्लेव ऑफ हैबिट्स की बात आ रही है, ये सारी चीजें जो यहाँ पर बताई गई, वैसा अगर करते हैं वैसा नहीं करते हैं तो हम जो है वो पीछे पड़ जाएंगे। एज फार एज 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, हमको जो है अब आइडल लाइफ नहीं बितानी, एक जगह पड़े रह करके जो वही चीजें नहीं करनी। अगर हमको जिंदगी में कुछ बनने का है, एज फार एज दिस पोयम गोज, अगर हमको जो है वो तरक्की करने का है तो ट्रैवल, रीड, listen to the sounds of life, appreciate yourself, don't kill your self esteem, let others help you, don't become slave of your habits, don't walk on the same path regularly, change your routine,
wear different colors, and speak to those to whom you don't know. Then you will have a bright and beautiful future. This way, we learn three stanzas from the poem You Start Dying Slowly. Next, in our next lecture, we will complete this poem. Assalamu alaikum.